हेलो। हेलो, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। चैनल का नाम इस बार याद है ना? हाँ, कल्चर्ड कास्ट। या हाँ। और बाय द वे हमने ना पहले पॉडकास्ट में एक गलती कर दी थी। हमने बोलना तो चालू कर दिया लेकिन हमने बताया नहीं कि हम खुद कौन है। तो जो सुनने वाला है उसको आवाज़ सुनाई आ रही थी लेकिन ये पता नहीं था कि बोल कौन रहा सो द वन हु स्पीकिंग इन इंग्लिश इज काजू। है। या और मैं शान हूँ और बाकी के जो दो है जो पहले पॉडकास्ट में थे वो आज है नहीं, तो हम बस दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ओके। सो Dandadan released. We'll talk about that first. 2 वीक्स हो चुके हैं आके Yeah, एंड 2 एपिसोड्स पे। Dandadan released like last week, right? हम्म। And I've been like hearing about the news a long time ago, like the 6 episodes that got leaked and stuff like that. And I've been interested about what that anime is basically. I've heard what it is like the premise of the anime, and I've been interested about it. Like I didn't even touch the manga. Like I wanted to see how the anime turns out. So like I waited for that, and I'm not disappointed at all. Like they definitely delivered what they said they would. Like what the premise said, that's exactly what the anime showed. अभी तक तो वैसे बस 2 एपिसोड्स आए बट अभी तक ठीक लगा है मुझे तो। Yeah, it's like really interesting to be honest. या मतलब मैंने भी इसके बारे में पहले नहीं सुना था, बस वो जब उसके चैप्टर्स कह रहा हूँ एपिसोड्स लीक हुए थे तो बस दान के नहीं हुए थे, और भी कई सारे एनिमे के हुए थे, बट वहाँ पे मैंने बस इस नाम को पहली बार सुना था। और उसके बाद कहीं पे पढ़ा था मैंने कि बहुत ज़्यादा इस एनिमे का वेट कर रहे बहुत लोग, तो मैं सोचा कि ऐसा क्या है, तो मैं जाके जब देखा इसका कि इसमें क्या होगा तो वही स्पिरिट एंड एलियन वाला थिंग था। तो मैं सोच रहा था कि कैसे वर्क करेगा। और सेम मैंने भी मांगा को इसके जाके नहीं पढ़ा, क्योंकि सच कहूँ तो मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था कि मांगा पढूं। मैं बस था कि चलो ठीक है कैसा रहेगा वो देखना चाहता था। एंड या मैंने वो उसके कोई लीक एपिसोड्स को सर्च करके नहीं देखा कि क्या है, सच कह रहा। Yeah, and like watching this anime, I got a lot like Mob Psycho 100 vibe kind of from it, like the whole quirky, dark humor and stuff like that. It really reminded me of Mob Psycho 100, which is a good thing by the way. Like Mob Psycho 100 is like one of my favorite animes of all time, and like for a lot of people it is, and comparing that to this is like a good thing because there aren't a lot of animes which have these kind of dark humors and stuff like that. I mean there are, but like not how Mob Psycho 100 is. Like it has its own charm and it's unique and it's quirky, and not a lot of anime has that. Sure, One Punch Man has it, but like both of them are from the same author, so yeah. And like I got that same vibe from Dandadan basically. I got reminded of Mob Psycho 100, and not gonna lie, I feel like rewatching that anime too. मैंने मॉब साइको नहीं देखा है, बट मैंने कुछ टाइम पहले वो एक रील देखी थी जिसपे ऐसा दिखा रहे थे कि दोनों एनिमे का कुछ मतलब रेफरेंस दिया है दान ने उस एनिमे का, मॉब साइको का। हाँ, मुझे नहीं पता वो एक्चुअली ऐसा हुआ है या फिर बस फैंस ऐसे बकचोदी कर रहे हैं, जो कि वो अक्सर करता है। Mob Psycho 100 is like, yeah, it is basically spirits, and Mob has psychic abilities that he can exercise them with. हम्म। हम्म। And Momo in this anime has those abilities as well, and the spirit stuff. या मॉब साइको देखना है मुझे। It is really good. You should try it. या मैंने सुना है, और एक्चुअली वो ना उसको अभी तक ना देखने का रीज़न भी यही था कि वन पंच मैन का काफ़ी ज़्यादा मतलब वन पंच मैन से आर्ट स्टाइल काफ़ी सिमिलर है, तो वो पता नहीं वन पंच मैन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, तो शायद इसलिए मैं अभी तक दूर था। बट देखूँगा किसी दिन, क्योंकि
सुना तो है कि अच्छा है। Hmm. I mean, it is definitely really nice. Anyway, back to the topic. Um, it is definitely weird. Dandadan is definitely weird. The first episode caught me off guard. The whole aliens. या I was like, what the heck am I even watching? अरे पता है क्या, जब एपिसोड स्टार्ट हुआ ना, अब मुझे कुछ पता नहीं था इस एनिमे के बारे में, मतलब कि कैसे टोन को लेके चलेगा। अब एपिसोड स्टार्ट होता है, शुरू में ही मोमो और उसके एक्स वाला सीन, मैं सोचा ओके ठीक है, ऐसा भी है। एंड देन उसके बाद में जब कैन को इंट्रोड्यूस करा स्टोरी में, उसके कैरेक्टर को जब देखा मैंने, एंड वो जैसे बात कर रहा था, वो काफी अनोइंग लग रहा था। मैं सोच रहा था क्या कर रहा है भाई तू, मतलब वो वो बहुत वियर्ड लग रहा था, वो पीछे मुंडी डाल के आगे बात कर रहा Ah, yeah. है। एंड मुझे लग रहा था कि इसकी आवाज मैंने कहीं पे तो सुनी है, बट याद नहीं आ रहा था। एंड देन मैं जब Tanjiro, सर्च right? करा गूगल पे तो पता चला या तांजीरो की वॉइस थी वो। और मैं वही सोचूं कि कहीं पे तो सुनी है, सुनी सुनी लग रही है। Momo's voice also reminded me of like someone. I think it is. I'm not sure, but I think it's like Nobara's VA from Jujutsu Kaisen. हो सकता है। Yeah. नोबारा जुजुत्सु काइसन, ओके। ओके, मैंने जुजुत्सु काइसन भी नहीं देखा है तो But yeah, I really heard Tanjiro's voice in Ken, basically. Like, it's the same damn voice, there's no difference. या वो कितना भी मतलब डिफरेंट होने की कोशिश करे, बट पता चल रहा है कि वो ओके, वो उसी की वॉइस है। Yeah. Also, the Turbo Granny is voiced by Luffy's voice actor. Yes, voice या actress. वो मुझे बाद में पता चला था। और मैं सोच रहा मैंने नोटिस कैसे नहीं करा, 1000 के ऊपर एपिसोड्स देखे वन पीस के, स्टिल मुझे वो पता नहीं चला कि लूफी था वो। Yeah. मैं सर्च कर रहा ये वॉइस एक्टर सेम है या नहीं है नोबारा की। Hmm. Check it out. मोमो, नाम क्या था मोमो का, अयासे Yeah. वॉइस एक्टर, ओके। नहीं नहीं, डिफरेंट है। Different? Yeah, okay. I mean, I या thought I heard डिफरेंट है। the. Yeah, never mind. रुक, मैं देखता कि वो किसी और कैरेक्टर को तो करा ही होगा ना, तो पता Yeah. चल जाएगा। छोड़ ये ओ ओके, ओके। Huh? एक फ्रीरेन, फ्रीरेन में एक कैरेक्टर को करी है, बट तूने फ्रीरेन वहां तक नहीं देखा, सो Oh, वो okay. वो बाद में किसी और दिन बात करेंगे उस पे। हाँ। सो दान के 2 एपिसोड्स आए हैं और मुझे दोनों ही ठीक लगे। फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि वो अच्छा इम्प्रेशन छोड़ गया जैसा उसको ज़रूरत थी पहले एपिसोड में करने की। Yeah, सेकंड definitely. उतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं वो शायद मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि मैंने मांगा अभी उसकी स्टार्ट कर दिया है, Huh. 5 ही चैप्टर्स रीड करे हैं, तो पता है मुझे आगे के एपिसोड्स में 1-2 एपिसोड में और क्या होगा। Huh. एंड आई थिंक ठीक ही है, एनिमेशन अच्छा है इसका। Yeah, the animation is great. और अगेन एक और चीज़ जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने बोला था कि इसका ओपनिंग सॉन्ग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एंड अब मैं वो चीज़ को वापस लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो मैंने बस एक बार सुना था और मुझे लगा कि नहीं है I अच्छा। liked it from like when it got leaked. When I heard like the small snippet of it from the leaked version, I honestly enjoyed it because I like the artist's style. The artist also like released Bling Blank Blank that one, right? From what was it? या Marshall. हम्म। Yeah, so like I enjoy that style a lot. Like it's so weird and it fits the anime basically. It fits the aesthetic of the anime. या
मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाना कैसा है, लेकिन मैंने 2-3 बार सुना और फिर मैं सोचा कि ओके अच्छा है। मतलब हाँ स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि मैं ऐसे टाइप के म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, कानों में सेटल नहीं होता जल्दी। या बट या अच्छा अच्छा ओपनिंग सॉन्ग है वो। yeah, let's see how this goes and hopefully it doesn't disappoint us. मुझे नहीं लगता डिसअपॉइंट करेगा, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 ही एपिसोड्स आए हैं एंड हाँ 11 और 12 समथिंग ओवरऑल एपिसोड्स है इसके पूरे सीजन में, तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ पे डिप कर जाएगा कहाँ पे नहीं। बट अभी तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत है इसको लेके। yeah, me too, like I'm expecting a lot from this anime. या वही, और 2 एपिसोड्स अच्छे थे, टू Yeah, बी वेरी ऑनेस्ट। it is really nice. या और कुछ मतलब देख, मैंने इसका जब मांगा पढ़ा फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद, तो कुछ ऐसे जो पैनल्स है उनको अगर कंपेयर करें एनिमे के साथ में रख के फ्रेम बाय फ्रेम, Hmm. तो एनिमे के अंदर ना थोड़ा वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करने की। जैसे पहला सीन वो था जो मुझे नोटिस हुआ जल्दी, तो वो जो फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में जब मोमो को अपना नाम बताता कैन, हाँ और वो जो पीछे ब्लास्ट होता मोमो के, हाँ वो मुझे लगता है वो इसमें नहीं था, मांगा में नहीं था वो। it wasn't. मांगा में जस्ट ना, मांगा में बस मतलब वो सीन था, हाँ बट वो ब्लास्ट नहीं था मोमो के पीछे। जो okay. एनिमे के अंदर वो म्यूजिक बीट के साथ उन्होंने उसको मैच कर दिया एंड वो काफी सही लगा। तो मांगा में बस इतना था कि हवा चल रही एंड मोमो की तरफ ऐसे जूम होते हुए ऐसा दिखा रहे थे, तो Oh वैसा था मांगा में। तो मांगा के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ था। yeah, that blast definitely added to the comic relief. वही, और छोटी चीज थी वो लेकिन अच्छी थी। Yeah. और अभी तो मतलब इसके कितने 2 एपिसोड्स आए ना अभी। लास्ट एपिसोड कब आया, कल या uh, परसों? Day before yesterday. या तो ओके, तो मतलब 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, अब आने वाले एपिसोड्स का वेट करते हैं और जब वो आएंगे तो तब उनके ऊपर बात करेंगे। बट अभी तक मतलब तुझे क्या लगता है कि अ, कितना तू मतलब दोनों एपिसोड्स को अगर रेट करना है तो कितना करेगा? I would rate the first episode an 8. Like, it definitely gave off a really good start. It did give a good हुँ, introduction to how the world is. I felt like the या only issue I felt with was it that, like, it felt a bit too quick at times. Like, the story just हुँ। went by quickly. Like, you know what saying. Like, हाँ, normally. मतलब फर्स्ट Yeah, the या फर्स्ट pacing was एपिसोड like में very बहुत quick. जल्दी चीज़ें हो गए। Yeah, yeah, yeah. हुँ। That's the only thing like अब तो शर्म कर ले I've वन पीस। yeah, that's the only thing that I've like had an issue with in the first episode. But other than that, it made a great impression and it made like a statement of what the anime is about and what how the actual vibe of the anime is. The second episode was like setting up how like they can work together as a team. I think like that's how the second episode was, हुँ, like introducing his power and how she has to basically hold him from transforming completely into the granny turbo thing. I mean, yeah, the Granny Turbo lady, and like their teamwork basically, and like their dynamic is more हुँ, focused in the second episode, which is good as well. But like, from like, here's the thing: in the first episode, everything went by so quickly, and in the second episode, it felt like they were taking too much time. That's या what I felt. वो वो एलियन के ऊपर ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि वो मतलब भागे ही जा रहे, कुछ हो नहीं Huh? रहा है Yeah, और that's कुछ what. नहीं हो रहा है, बस भाग रहे थे। Yeah, that's what I had my problem with the second episode. I would rate that a 6.5. ओके, काफ़ी स्पेसिफिक था। Huh.
I mean, it's not bad, definitely not bad, but like the first episode was way better, at least, in my opinion. या या What do you think though? मेरा कैसा हो गया कि फर्स्ट एपिसोड, हाँ जैसे तूने बोला कि फास्ट था थोड़ा, और वो सब ठीक है, मतलब मैं वो सब समझ लूँगा कि चलो तुम बहुत ही अच्छा पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो, यस गुड। बट जो चीज़ मेरे लिए अजीब थी कि फर्स्ट एपिसोड में ही एकदम सेक्स वाली बातें चलने लगी। मैं सोच रहा क्या हो रहा है ये क्या है? Yeah, क्योंकि definitely, man. I अ, felt weird मैंने too. मैंने स्टॉप कर दी मेरी स्क्रीन जब वो एलियंस मोमो को पकड़ रहे होता है एंड उसकी कपड़े फाड़ देता है, एंड मैं सोच रहा क्या। और थोड़ा मैं एक्साइटेड हुआ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट बट जब वो मतलब सीन हो रहा था पूरा, तो उसके बाद उसको बाँध वगैरह आती है, उसके बाद जो बातें कर रहे हैं वो मुझे इतनी हँसी आ रही थी वो देख के, और मैं सोच रहा था कि क्या ये फर्स्ट एपिसोड में कुछ कर देंगे उसके साथ में, ऐसा ऐसा मुझे सही में लग रहा था। बट देन सडनली वहाँ पे कैन आ गया ग्रैनी बन के, हाँ, और या बचा लिया, या फिर मोर लाइक कैन को ही मोमो ने बचा लिया बाद में। हाँ, yeah. बट या दोनों एक ही चीज है। So how would you rate it? रेट रेट का पता नहीं यार, रेट मतलब कैसे करता है अब। 10 में से पहले एपिसोड को कितना दूं मैं? चलो ठीक है, पहला एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा तो उसको 9, Nine, एंड nice. सेकंड एपिसोड ओके था तो Huh, उसको 7। seven. Yeah, that's respectable. या बट मतलब सेकंड एपिसोड को लेके मेरा एक ही दिक्कत था कि काफ़ी वो जो फाइट सीक्वेंस था वो जल्दी निकल सकता था। Hmm, yeah, बाकी yeah. ठीक है, मतलब तुमने जैसे बट वो उतना भी स्लो नहीं है, बट वो कंपैरेटिवली स्लो था फर्स्ट एपिसोड के। Yeah, that's the thing. Yeah, that's the thing. Because like the first episode went by so quick, the pacing was like really fast, and in the second episode suddenly just went so slow that it made like a pacing issue basically. Like the first episode was really fast या and the second is like really slow. That's the problem. बट मुझे क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम इसके ओरिजिन में ही रहती है, मतलब इसका जो मांगा है Huh. उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है। मांगा में भी ये पूरा सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। तो Okay. आई थिंक वो लिटरली पूरा ही पैनल टू पैनल उसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो चलो करने दो जैसा कर रहे हैं। आई मीन एनिमेशन अच्छा मिल रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। Exactly. I'm like really, I like the character design of like Ken's, ability, like, how he transforms into that thing, like how that person भाई basically. भाई ट्रांस ट्रांसफॉर्म का तो पता नहीं, उसके बाल बदल ज़रूर रहे थे। Yeah. And yeah, that looks really cool to be honest. Like it makes him look cool at least. And like his voice changes as well. भाई लास्ट वाला उसको कूल लग रहा होगा, बट जो पहली चेंज हुई उसकी हेयर स्टाइल वो कूल नहीं थी बिल्कुल भी। No, no. वो उसमें तो वो पूरा चोमू लग रहा था। Like his voice changes when he uses that power, right? Like that's interesting. Like his whole mood changes suddenly. He becomes more depressed. हाँ वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। Yeah. क्या क्या हो रहा है बंदे को? Yeah, I didn't understand what happened there. वही तो, वो मतलब इतनी डिप्रेसिंग बातें कर करके ऐसे चल रहा और एकदम स्पीड बढ़ा दी उसने। मैं Uh, सोच रहा भाई ये कितना कूल है। बट वो ज्यादा देर नहीं यूज कर पाता वो फॉर्म को, तो वो भी एक दिक्कत है। बाय द वे तुझे थर्ड एपिसोड अच्छा लगेगा काफी, क्योंकि एक नया कैरेक्टर आएगा उसमें, तो काफी सही लगेगा तुझे। oh, I'm interested now. हाँ क्योंकि अभी तक दो ही कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, तो वो Yeah. मतलब और कहीं पे जा ही नहीं रही स्टोरी, तो अभी तीसरा कैरेक्टर आएगा और वो और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि थोड़ा अलग कैरेक्टर के बारे में जानने मिलेगा, It's क्योंकि कब still से बस दो ही ongoing, right? कैरेक्टर को देख रहा है। आई थिंक हाँ, Yeah. ऑन Huh. गोइंग है। Okay. So yeah, you're right. Like it just began, and we only know these two characters. There are more characters to like know, and you know. या
तो इसके 2 हो चुके हैं एपिसोड और ठीक-ठाक, मतलब दोनों को ही अच्छे ही लग गए। तो डेफिनेटली आई क्योंकि लाइक इट। अच्छे थे वो। या तो इसके भी 2 एपिसोड थे एंड इसके साथ एक और एनिमे चल रहा है उज़ुमाकी। उजुमाकी, तो यस। या क्या लगता है उज़ुमाकी के बारे में? Okay, before I talk about Uzumaki, I want to talk about Junji Ito. Okay, so like Junji Ito, known him for a long time basically. I've known him way before I started watching anime like very seriously. And like I've known him because there is this one game called Silent Hills which was about to come out, and it was directing Hideo Kojima, and Junji Ito was helping with that game as well. So I heard, like, I'm like a huge Hideo Kojima fan because of, like, I just love his games. So I was really interested in what that is, and since he's collaborating with Junji Ito and that name was new to me, I've like did my in like research about him, and like I found out who he is and what his works are, and I was like really fascinated by it because like these are like really creative, and uh, like I was wondering what the hell is going on inside that man's head because this is just so dark and twisted, and I've like uh, this is very interesting. I felt like this guy is like the modern Stephen King. So yeah, Junji Ito, like I've known him for a long time. I'm familiar with his work. I haven't read Uzumaki before, but I've read a few other ones. And I've only watched the first episode, and like the art style and the like, how it is identical to the anime, like really intrigued me a lot. Like it was like I saw a lot of comparison videos about how both of them were like side by side, and it like really looked so good. They used up a lot of money for that episode itself. I saw the second episode and how the quality dropped, and I feel like they used most of the money for the first episode and then just stopped. But like story wise as well, it's like really interesting how the whole Uzumaki concept is, like that town and all. Um, like I was really interested and I wanted that consistency throughout the anime, but you know how it is. And like अ, being पहला a तो huh? मैं कह रहा था कि जो तूने बोला ना कि बजट का, मैंने कहीं पे पढ़ा अभी कुछ टाइम पहले कि पहला और दूसरा एपिसोड अलग-अलग स्टूडियो ने बनाया है, ऐसा कुछ। Oh, oh, that makes sense why the quality just dipped suddenly. बिकॉज़ मैंने पढ़ा था और उसके बाद तूने भी जीसी पे कुछ भेजा था वो पोस्ट आई गेस। हाँ, yeah, तो I sent उस the. पे था कि फर्स्ट एपिसोड बनाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है इस तरह से बनाने के लिए। तो उनके पास कुछ ही ऑप्शंस थे, एक तो पहला एपिसोड बना दिया, अब आगे नहीं बनाते, ख़त्म कर देते और पहला एपिसोड रिलीज़ कर देंगे, बस उतना ही। और दूसरा था कि मतलब जैसा है, मतलब थोड़ा कम बजट वगैरह में चलने देना। और तीसरा था, पता नहीं, भूल गया मैं। Okay, so बट like they're just going to scrap the whole thing. That was the third option, I think. पता नहीं भाई, देख पहली बात तो क्या है कि स्टार्टिंग में ही हाँ, ये तो पता था मुझे कि रश होने वाला है, क्योंकि हाँ, देख काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल बात है। 20 चैप्टर्स की मांगा है और इसका हर चैप्टर टिपिकल मांगा चैप्टर से थोड़ा बड़ा लगा मुझे पढ़ते हुए। okay. और तो ऐसे 20 चैप्टर्स की मांगा को तुम बताते हो कि तुम 4 एपिसोड की एनिमे ला रहे हो, तो वो कोई भी समझ जाएगा कि ये रश होने वाला है। Yeah, अगर it's just अगर four उन्होंने episodes. अगर अगर उन्होंने एपिसोड 1 घंटे का रखा हो तो बात अलग होती, बट वैसा भी कुछ नहीं रहा। तो मतलब कितना 24 मिनट का एपिसोड था, दोनों एपिसोड 24-24 मिनट के थे, 24 मिनट्स के। एंड मैंने दोस्त मेरा बोला कि
जो थर्ड एपिसोड था वो 28 मिनट्स का था, तो आई थिंक 4 मिनट बढ़ा दिया, लेकिन कितना ही फ़र्क पड़ेगा उससे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा। क्योंकि एक ये भी है ना, 4 एपिसोड में तुम 20 चैप्टर्स को अगर कवर करना है तुम्हें, तो तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक है कि बहुत से पोर्शन को बाहर निकाल के फेंक दो और छोटे मटेरियल को अच्छे से दिखाओ शॉर्टकट लेके। दूसरा है कि तुम पूरा दिखाओ लेकिन उसकी खिचड़ी कर दो और सारे अलग अलग सब प्लॉट जो भी है उनको सब मर्ज कर दो, एक ही साथ चला दो और उनको बस बिगाड़ दो। और उजुमाकी ने सेकंड वाला करा है अभी तक तो। हाँ, it is like yeah, you're right. Like, wait, what was I going to say? Sorry. Can you cut this part? नहीं नहीं, ये तो रखना पड़ेगा। No, man, not the heck. I was going to say something, I नहीं, forgot suddenly. My brother came into the room and I forgot what I was going to say. आई थिंक प्लॉट वाली बात पे कुछ बोल देता शायद, और कौन सा टॉपिक था, और कोई पॉइंट था नहीं आई गेस। The plot wise, I have like, it feels. I mean, even if I didn't know it was a Junji Ito manga, I would have like understand it. Like I would have found it. I mean, I would have got it if like watching the episode. What the heck happened to me suddenly? Okay, like his तूने पी tradition. रखी है क्या? Huh? तूने पी रखी है क्या No. दारू वगैरह? So like तो कुछ कह नहीं सकते। so like this anime it has the same Junji Ito style and like how it is. Like, wait, what the heck happened to me, dude? I can't speak. क्या हो गया भाई? I don't know what happened. ओ, मुझे क्या लगता है कि ये कर्ज है, और ऐसा कर्ज है ये कि मतलब तू जो भी बोलने जाएगा तो भूल जाएगा। You talk, you talk. जूंजी तो का फर्क I'll है। talk next. ओके, तो पहला एपिसोड जब आया था उजुमाकी का, मैंने देखा और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि एनिमेशन अच्छा था। और फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने आगे आने वाले कुछ कैरेक्टर्स को ठीक है डाला था, बट वो ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनी थी फर्स्ट एपिसोड में। और इसलिए मुझे लगा कि ओके ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स को अच्छे से उन्होंने कवर करा, और इसलिए पता नहीं मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता था कि रश होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा था। और जब सेकंड एपिसोड आया मैंने देखा, अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग उसके एनिमेशन को लेके वरीड है। और सच बताऊँ तो मैंने वो नोटिस करा तक नहीं जब तक मैं न्यूज़ नहीं पढ़ा। मैं फिर सोच रहा मैं अंधा बंदा हो गया हूँ क्या क्योंकि मैंने जब वो सेकंड एपिसोड देखा तो मेरा जो प्रॉब्लम था उस एपिसोड से वो ये था कि प्लॉट के साथ बकचोदी कर दी। क्योंकि प्लॉट को एक तो उन्होंने ना इतने अलग अलग स्टोरी लाइन्स को एक साथ चला रहा है, वो देख के भाई इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि क्या कर रहे हो यार, इससे अच्छा मत करो। मतलब हर एक स्टोरी अपना टाइम लेती है, वो इसलिए वो अच्छी लगती है। तुम बस आधा अधूरा दिखा के छोड़ने से अच्छा मत दिखाओ, स्किप कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं था कि तुम, क्योंकि देख एक है उसमें जैक इन द बॉक्स ऐसा कुछ है, उसका एक स्टोरी लाइन है। तो मांगा के अंदर वो अच्छा लगता है क्योंकि उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करा है। लेकिन एनिमे के अंदर कैसा है कि उसके कैरेक्टर को दिखाते और एक इंसिडेंट दिखा देते उस कैरेक्टर के साथ में एंड देन ख़त्म, जबकि असली चीज़ उसके आगे हुई थी। तो अगर तुम इस बंदे को स्टोरी में नहीं डालते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता पूरे स्टोरी पे, तो स्किप कर सकते थे और जो दिखा रहे हो उसको ही अच्छे से दिखा सकते थे। बट पता नहीं उन्होंने क्यों डाला फिर,
सच मतलब कोई चीज़ दिखा रहे हैं ना, मेरा बस कहने का इतना है कि कोई चीज़ दिखा रहे तो पूरी तरह से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। उसके हाँ। अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उज़ुमाकी में ना बहुत से स्टोरी आर्क है, और मुझे लगता है कि उसमें से बहुत से तो स्किप हो सकता है, और अगर वो स्किप होते भी है तो ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करता अगर तुम लिमिटेड चीज़ को दिखाते बट अच्छे से दिखाते। ज़्यादा लोगों को फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो मिला है उसको अप्रिशिएट करते वो कि ओके 4 एपिसोड्स ही थे इनके पास, स्टिल उन्होंने अच्छा करा। हाँ। तो वो एक साइड रह सकती थी, थी। है नहीं, या। क्योंकि उन्होंने खराब कर दिया। Like I watched the first episode, like, and yeah, you're right, the first episode was like honestly great. The first episode was like really nice, and it wasn't amazing or anything. It definitely felt rushed, but the with the art style and everything, I did feel like it was really nice. I had expectations. Like I thought it would be the same throughout. Like the whole animation style and the art style would be the same throughout. But the second episode dropped, and I didn't even want to watch it at all. I was that disappointed in that, and I didn't even know it was just going to be 4 episodes. So like I was even more disappointed with that as well, because I've seen the mangas and like how thick they are, and yeah, that definitely doesn't fit in 4 episodes. If they are going to make an adaptation of such a great you know manga, at least be respectful for the source material and do it properly. Like they've announced this anime so long ago, like I don't remember, 2019 or something, I don't remember properly, but yeah, they've been they announced this project so long ago, and they couldn't even like you know do justice to the actual source material. Like the first episode was okay, I mean great, yeah, I agree, the animation was great. It definitely felt like Uzumaki, and it felt exactly like how the manga art style is. It's great, but like you have to follow through with that in every single episode that you drop. But seems like studio interferences and budget issues like definitely made it really unacceptable. And I haven't watched the second episode because of how bad the animation is. Like the first episode was amazing. Like even if the second episode had a small drop in animation, I wouldn't have mind that. But since it's like this noticeable, I was like so pissed off, and I didn't even bother to watch it. And like Hmm. considering how big of a legend Junji Ito is, they should have at least respected him and like made a better product, you know? Hmm. मेरा भी वही था कि अगर देख, पहली बात तो मुझे जब पता चला कि इसको 6 साल से बना रहा है, तो पहली चीज़ मैं ये सोचा कि तुम 6 साल से बस एक एपिसोड बना रहे क्या? क्योंकि इसके टोटल 4 एपिसोड्स है, तुम 6 साल से बना रहे हो, बना क्या रहे हो मुझे वो बताओ अब तुम। Exactly. क्योंकि क्या था भाई ये, मतलब 5-6 साल वेट कराता है, उसके बाद ऐसी हरकत करता है। मतलब इतनी अच्छी मांगा है वो, इतनी बड़ी मांगा है जो मतलब उसके रिस्पेक्ट के मामले में, तो क्या है ना कि अगर बजट नहीं होता तो हाथ ही मत लगाओ, Yeah. सिंपल बात है। Yeah, they should have just like have do. Why did you even bother if you didn't like want to follow through with it? You know, वही तो, like a बट लेट्स better सी यार, animation मुझे studio could have just done it rather than this one. या Yeah, let's see how this goes. Like there are 2 more episodes left. I don't think it's going to go great at all. मैं तो देखने का नहीं सोच रहा, बट मैं शायद देख लूँ अगर मुझे वीडियो बनानी है तो। Yeah. I mean, you could. It's like a good content idea. You can talk about a lot of things.
हाँ मतलब बना लूँगा मैं, आई गेस एक रात में तो वीडियो हो जाएगी बन के। ऐसे टॉपिक बड़ी जल्दी बना लेता हूँ मैं। Yeah, I need to make more videos as well. My channel is dead as या well. या मैं तो होप कर रहा हूँ कि कोई और स्टूडियो इसको एनिमेट कर ले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yeah, me too. Like, I hope they another anime studio like properly animate it and do justice to this amazing story, basically. लेकिन मैं तो मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अच्छी खासी। Yeah. कितने 2 एपिसोड्स बचे हैं ना इसके? Yeah, just two more episodes left, and after that it's done. ना ना ब्रो, ना 3 एपिसोड्स आ गए ना, एक ही तो बचा है। Yeah, 3 episodes came out, right? Wait, the third episode came out? या When did ट्वेंटी it एट come out? मिनट्स I का didn't. है, मैं सुना। आज की डेट क्या है, मतलब दिन कौन सा है आज? Sunday. संडे। तो संडे को ही आता है आई गेस, वो तो आज आ गया। Okay, so like, how was the animation style? Is it still bad? मैंने नहीं देखा। Yeah, I mean, I bet it is because yeah, the animators dropped the statements, right? How they were going to either like drop the first episode and cancel the rest and stuff like that. मेरी फ्रेंड कह रही थी कि 28 मिनट्स का एपिसोड है, और जैसा सेकंड था वैसा ही है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। Yeah, I don't तो लेट्स expect सी, it अभी to. मतलब लास्ट, Huh. वही तो लास्ट एपिसोड बचा है अभी, मतलब क्या ही करेंगे एक एपिसोड में। Yeah. मैं सच बताऊँ क्या, मैं तो वो देखना चाहता हूँ कि क्या बकचोदी करेगी लास्ट एपिसोड को, कैसे एकदम एक एपिसोड में खत्म करेगा, मुझे वो देखना है सच सच में। Huh. I feel like this is like more of a disaster than how Berserk was. Like the anime adaptation of Berserk. मैंने उसका एनिमे नहीं देखा, बट कुछ कुछ सीन्स देखा। तो Yeah, कौन से it सीन्स is. देखे वो तुम लोग समझ जाओ। मैं नहीं बोल रहा। I mean, it is like really weird, and it is like I feel like Uzumaki was worse than how the Berserk anime was. हम्म। So yeah, that is Uzumaki. या मतलब और कुछ है नहीं उसके बारे Yeah, में there बात is करने को। nothing special about it, I guess. I mean, it is a special anime, but I mean, manga, but the anime sucks, so can't do anything about it. या मैं तो कहूँगा कि उसका मांगा पढ़ ले तू, हाँ, I एनिमे से will. अच्छा। वही। और उज़ुमाकी ठीक है, मतलब इसको अब पीछे छोड़ देते, क्योंकि मेरा दिमाग काम करने बंद हो जाता है इसके बारे में बात करके। तो अभी मैं देख रहा था आज ना, वन पीस कुछ अनाउंसमेंट करने वाला था, ऐसे सुबह बोला था उन्होंने। और मैं Oh, काफ़ी एक्साइटेड था, शायद मुझे लगा कि क्योंकि इस टाइम के अराउंड साल के वो यूजुअली मूवीज़ को अनाउंस करता है। oh, okay. मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, मूवी का अनाउंसमेंट हो सकता है। बट जब मैं उसके बाद में मैं बिज़ी था थोड़ा, और जब मैं रात को मैंने अपना फ़ोन चेक करा तो देखा कि वन पीस एनिमे 6 मंथ के ब्रेक पे जा रहा है। 6 months. या 6 मंथ्स के। और मैं थोड़ा मतलब हैरान था, मुझे पहले लगा कि ओके शायद से कोई मजाक है, और मैं जाके एक दो साइट्स पे चेक करा कि क्या ये सच में हो रहा है, और पता चला कि ये सच में हो रहा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सही डिसीजन है, क्योंकि देखे तो ये पहली बार हो रहा है कि वन पीस एनिमे जब से एयर होना चालू हुआ है तब से इतना बड़ा ब्रेक ले रहा है। और एक चीज़ देख, दो चीज़ें अच्छी है। पहला तो ओडा को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, कि वो जो टेंशन रहता है कि एनिमे जल्दी मांगा के क्लोज आ रहा है तो मांगा को आगे रखना है, हाँ. वो निकल जाएगा। और ओडा अपने स्पीड से मांगा को कंटिन्यू कर पाएगा।
Hmm. दूसरा, ऐसा होगा कि एनिमे और मांगा में काफ़ी गैप आ जाएगा। Ah, वन yeah. पीस के पेसिंग का प्रॉब्लम इस वजह से ही है क्योंकि उनको गैप रखना पड़ता है मांगा के साथ में। और वन पीस हर वीक एपिसोड आता है तो उनको समहाउ वो थोड़ा स्लो होना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है और कोई। Yeah, yeah. तो ऐसे में अगर 6 मंथ्स का मांगा मटेरियल आगे निकल जाएगा तो वन पीस एनिमे के पास अच्छा चांस रहेगा कि वो, देख वीकली होने के बाद भी एनिमेशन क्वालिटी लिटरली टॉप लेवल की है। बट अगर इतने ब्रेक के बाद वो आ रहे हैं तो पेसिंग बेटर करेंगे, एनिमेशन और इम्प्रूव कर पाएंगे। आई थिंक वन पीस एनिमे के लिए ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जो आर्क अभी वो एनिमेट कर रहे हैं, एग हेड आर्क, तो एग हेड काफ़ी अच्छा आर्क है जो काफ़ी मतलब आगे चल के तो जो जैसे जैसे वो एंड हुआ था वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब पीक पे एंड हुआ था अपने वो आर्क। तो Oh. मुझे लग रहा है कि यार मतलब अगर एनिमे अच्छे पेसिंग के साथ और बेटर एनिमेशन क्वालिटी के साथ में आएगा तो वर्क करेगा, और Hmm. बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और वो देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वन पीस का फ़ैन होने के इससे तो मैं यही चाहूँगा कि एनिमे अच्छा करे, क्योंकि एनिमे को लेकर एक ही प्रॉब्लम रही है हमेशा, वो है उसकी पेसिंग। Pacing, yeah. पेसिंग पेसिंग सॉल्व हो गई तो मुझे नहीं लगता इस एनिमे के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब तुम निकाल के बोल सको कि नहीं ये प्रॉब्लम है वन पीस के साथ में। पेसिंग है एनिमे के साथ में, उसके अलावा बहुत सही है। Yeah, it is definitely a good thing to take a break and get a gap between the manga and the anime, uh, because it is like really hard to even keep up with the weekly uploads with the same kind of quality that a great quality. It's hard to be consistent, basically. I mean, and या even if it is hard, they still delivered for so many years. They deserve this long break. 25, या And with how they are going to take their time with this 6 months, it's going. I mean, I feel like it's going to be really good. Like the animation is going to be even better than how it is right now. And yeah, like you said, even Oda can like be relaxed and go with his own time, like with his manga. And yeah, it is definitely good news for the One Piece fandom. और एक ये भी है ना देख कि मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का तो बाद में बता था। एक ये भी है कि वन पीस जो एनिमे है जो वीकली आता है उसका एनिमेशन क्वालिटी देखेगा ना तो वो काफ़ी सारी सीजनल एनिमे से भी बेटर है। Yeah, और वो I've वीकली noticed. वो ऐसे एपिसोड्स वीकली प्रोड्यूस करता है, तो मुझे लगता है वो डिजर्व करता है ब्रेक लेना। Yeah, definitely. दैट्स Toei व्हाट आई animation फील। deserves it. या मतलब कुछ कुछ जगह पे गाली खाना भी डिजर्व करते हैं जो कि मैं खुद देता हूँ उनको, क्योंकि टोई मुझे उतना अच्छा नहीं लगता स्टूडियो, बट उन्होंने मुझे लगता है वन पीस के साथ में जस्टिस करा है जितने उनके पास ऑप्शंस थे उसके साथ में। और एक और चीज़, नेक्स्ट ईयर वन पीस अप्रैल में जो टोई वाला वन पीस एनिमे है वो रिटर्न करेगा, लेकिन उसके साथ में नेक्स्ट ईयर वन पीस का लाइव एक्शन भी आ रहा है, वन पीस का एनिमे रीमेक भी आ रहा है, वन पीस का ओरिजिनल एनिमे वो भी चालू होगा अप्रैल में, और मांगा भी चालू रहेगा, तो वन पीस चार चार इसमें, Next year is लाइक the year of फोर One Piece. डिफरेंट, So many stuff about One लिटरली। Piece. आई मीन देख भाई, तू एक तो IMDb पे तो लास्ट टू टू और 3 ईयर्स से तो टॉप पर रह रहा है Hmm. साल की पूरी रेटिंग में, और उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर तो दो दो उसके शो आ रहे हैं और ऊपर से लाइव एक्शन भी आ रहा है, मुझे लगता है कि मतलब नेक्स्ट ईयर इसका जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। Definitely, अगर definitely. लाइव एक्शन अगर लाइव एक्शन वर्क कर गया ना Huh. गलती से भी, तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल है इसके फैंडम को रोकना। Do you know what I appreciate more about the live action? They are definitely like quickly bringing the second season.
like they are not letting the hype die, and they're not letting the interest in people die, and they're like getting with the second season like very quickly, filming it, stuff like that. या They are like keeping और up with the एक momentum. मुझे लगता है उनके अंदर ना वन पीस की लाइव एक्शन बनाने का पैशन है लिटरली, क्योंकि अगर तू देखे तो वो लिटरली उनके कास्टिंग में भी दिखता है, Yeah, definitely. जिस तरह से उन्होंने कास्टिंग करी है। कुछ कुछ है एक दो मतलब जिनको लेके मुझे थोड़े प्रॉब्लम है, बट उनके अलावा जो मेन कास्टिंग है वो लिटरली परफेक्ट है। Definitely, I agree. या मतलब दिखते भी भाई सेम है। अब एक्टिंग का तो देखे कि अभी जब आएगा एंड मतलब लाइव एक्शन, क्योंकि क्या है ना कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स थोड़े वो ओवर द टॉप वाले उनके क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशंस रहते हैं, एक्सप्रेशंस चलो निकाल भी लो प्ले से, बट उनका जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा अजीब रहता है, इवन लूफी का। बट हाँ. इनाकी ने मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पुल करा है लूफी का जो कैरेक्टर है, उसने मुझे लगता है ठीक करा है, और सीजन 2 में आई होप कि वो और बेटर हो जाएगा। Yeah. थोड़ा कैरेक्टर के साथ कंफर्टेबल हो जाते एक बार प्ले करते हो Yeah, तो नेक्स्ट definitely. टाइम जब तुम वापस प्ले करते तो थोड़े ज़्यादा और कंफर्टेबल रहते, एंड ऐसा लगता है कि तुम सही में इंजॉय कर रहे हो कैरेक्टर को। वही मैं होप करूँगा कि इनाकी लूफी के साथ करें। Yeah. एंड I'm like so glad that they respected the nationality of each character. Like they didn't. I'm या glad that they didn't cast a white dude as Luffy or something. या They definitely respected each and everyone's like nationality, each and every character's nationality, and casted them appropriately. So it fits. वही तो मतलब वो दिख रहा है उनके कास्टिंग में भी कि Hmm. दे आर पैशनेट अबाउट इट। Yeah, definitely. और चलो ठीक है, वन पीस का लाइव एक्शन का तो डिस्कस कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा लंबा खींच गया एक्सपेक्टेशन से। तो नेक्स्ट क्या था, और मैंने चश्मा निकाल दिया, मुझे दिख नहीं रहा। तू पढ़ ले क्या था। ओके, फ्री रन होगा, है ना? हाँ. या सो देखो, पहले तो मतलब थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि कैसा है, क्या चल रहा है। तो बेसिकली मैंने फ्रीरेन देखा था कुछ टाइम पहले, क्योंकि मुझे दिखा माय एनिमल लिस्ट पे वो टॉप पे जाके बैठा है। मैं सोच रहा ये क्या है, ये क्यों है, और कैसे है। तो ये जानने के लिए मैंने उस एनिमे को देखा। इसका जो पोस्टर था वो जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ये एनिमे उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट देन आई थॉट कि चलो इसको एक बार देख लेते, उसके बाद बात करते, क्योंकि दिखने में तो प्लेनेट भी अच्छा नहीं था, वो था। तो मैं ये सोच के इस एनिमे को स्टार्ट करा था, और मैंने 1 और 2 दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया था, और मुझे लगता है कि वो डिज़र्व करता है टॉप पे रहना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब स्टोरी अच्छी है बट कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है, सिंपल स्टोरी है, बट स्टिल वो स्टोरी और इमोशंस को कन्वे करने का जो वे है स्टोरी टेलिंग का, वो बहुत सही है, और मुझे वो हिट हो गया। आई थिंक क्लैनेट को देखने के बाद से तब से मैं थोड़ा वैसे भी सॉफ्ट हो गया हूँ। तो मेरे को हर चीज़ हिट होने लग गई है आजकल, पता नहीं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये एनिमे, तो मैंने बोला कि तुम लोग भी चालू कर दो। काजू, मनन और काव्या को बोला। मनन ने नहीं करा है बट Yeah. काव्या और तूने चालू कर दिया था। Yeah, we did. काव्या नहीं है आज यहाँ पे हमारे साथ, बेचारी। बट काजू है, और काजू ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने कंप्लीट करा है बट काजू ने आई थिंक 4 और 5 एपिसोड्स देखे समथिंग। Yeah. Okay, so like uh like I've been interested in how this anime is like Shan said, it was in the top of my anime list, and I saw it and I was like, huh, is it that good? Because like for so long, Full Metal Alchemist Brotherhood was on top, right?
Like every Yeah. one was claiming that to be the masterpiece anime and stuff like that. I still haven't watched it, Hmm. by the way. I'm sorry. Same. But yeah, like people have been saying that is their favorite anime and stuff like that. So and like it's been on top of the my anime list for so long, as long as I can remember. I've been seeing Full Metal Alchemist Brotherhood on top of there. And suddenly, Frieren was on top, and I was like, wow. So someone actually surpassed his Full Metal Alchemist in like reviews and stuff. I wonder how good that actually is. Because here's the thing, Full Metal Alchemist fans are like one of the most toxic fans too. Because like they downvote a lot of animes on purpose for like Full Metal Alchemist to be on top. I'm Yeah. sorry for वो that, but that's true. वो वो ना एओटी का फैंडम भी कुछ वैसा ही है, तो दोनों दोनों लिटरली वो एक ही कैटेगरी में आते हैं. Yeah, they review bomb other animes to stay on top. So like, here's the thing. So I was like, okay, this is like it's still on top, I think, right? Uh, yeah, Yeah, it is still Frieren on he top. has top पे. So I was like, Yeah. like I was like interested and intrigued. Like, okay, what is this? It looks like the poster looks very stale. I thought it was like some isekai shit. Honestly, I thought that was it. Yeah, Uh, same. and I was going to watch it, but then like I forgot about it. I like watched One Piece, I think, instead of Frieren. And then Shan said, "Yeah, you should watch it as well. It's really nice." And I started it a few days ago. And like as much as I've seen, it's like really nice. Like how the world building and stuff is, like it's really well done. The how characters are introduced, how they are like honestly though, even though I've met those five heroes, four heroes, no, five, right? Wait, Four, yeah, four, five, five. four है क्या? Four है, sorry. Yeah, four. Those four heroes, even though they were like shown a very few times in the first few episodes, I've still felt attached to them. Like they've done a great job in making us like these four characters and showing us how their characters are like even if it's like just a few scenes. They've Hmm. the one category that I would you know put this anime is in it, like it's just wholesome, it's just totally wholesome. Right. Yeah. वो uh, जो फर्स्ट एपिसोड था ना, huh. मैं फर्स्ट एपिसोड लगाया और देख रहा कि ओके, डीमन किंग को हरा दिया. मुझे वही टिपिकल इसेकाई वाला वाइब आ रहा था. मैंने Yeah, कोई yeah. इसेकाई आज तक देखा नहीं है, लेकिन जितना मैं उनके बारे में जानता तो वो डीमन वगैरह वाली चीज़ें काफ़ी कॉमन है उसमें. Huh. मैं सोच रहा चलो ठीक है, ऐसा है क्या, डीमन किंग को हरा दिया, गुड गुड. वो लोग उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं. मैं बोला गुड गुड. उसके बाद मिटियोर वगैरह की बकचोदी हुई. Yeah, मैं 50 बोला years अच्छा है. you'll meet फिर that thing. देन वो बोलती, या एग्जैक्टली वो बोलती 50 साल बाद, 50 ईयर्स हाँ. बाद मिलता है. अब मैं सोच रहा कि तुम लोग बुढ़े नहीं हो जाओगे. एंड उसके बाद में हमें पता चलता कि ठीक है, इसकी तो एज बढ़ती नहीं है. Hmm. और उसके बाद जब वो सीन आया कि 50 ईयर्स लेटर वो हीमेल से वापस मिलती है और वो बुढ़ा हो रखा है, Hmm. तब मैं सोच रहा कि ये एनिमे अभी तो चालू हुआ है और ऑलरेडी बुढ़ा कर भी दिया. ये मेन Exactly. कैरेक्टर नहीं था. मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा कि ये मेन कैरेक्टर नहीं था. और हाँ. उसके बाद में वो लोग ने जैसा प्रॉमिस करा था, वो मिटियोर देखने गए. Hmm. मैं सोच रहा यार चलो, लाइक इतना अच्छा लग रहा वो सीन और वो एनिमेशन देखने में, Hmm. Yeah. लाइक काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था. और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि फ्री रेन के साउंड ट्रैक्स बहुत सही है, Yeah, बहुत it ज़्यादा. is. Yeah, it अब is. और तो ना फर्स्ट एपिसोड में क्या हो गया, फिर वो सब हो गया एंड हिम्मेल मर जाता है. Hmm. अब मैं सोच रहा कि
इसको बुढ़ा दिखाने तक ठीक था, इतना तुमने फास्ट चल लिया, अब इसको मार भी दिया। मतलब क्या चल रहा है यार, ये तो मेन प्रोटैगनिस्ट था, इसको क्यों मारा, मैं ये सोच रहा। और उसके बाद में ना टाइम इतने जल्दी जल्दी जा रहे इस एनिमे में, 25 ईयर्स 27 ईयर्स हो गए, वो बंदा मर गया, Yeah. पर टाइम लिटरली बहुत आगे ऐसे भाग गया। मैं तो मतलब मैं सोच रहा था क्या मतलब अब दिखाएगी क्या, जो स्टोरी होनी चाहिए थी। Mm. अ, वो तो पहले एपिसोड में तुमने बोला कि डीमन किंग को हरा दिया, Yeah. मतलब अब क्या करना है, मैं ये सोच रहा था। बट इस एनिमे ने ये बताया कि डीमन किंग को हराने की बात नहीं थी, ये फ्रीरेन खुद की वो ह्यूमन साइड को ढूंढने वाले अभी जर्नी पे निकली है, क्योंकि वो वापस से वो उसी जर्नी पे वापस निकली है जो उसने कई साल पहले करी, कई साल पहले वो जिस जर्नी पे गई थी। और अब एक चीज़ अच्छी क्या है, तूने बोला ना कि अटैच्ड फील हो रहा है वो 4 हीरोज़ के साथ में। Yeah. अच्छी चीज़ ये थी कि मतलब उन्होंने ठीक है हमें कंप्लीटली उनके बारे में नहीं दिखाया, लेकिन हमने वो इमोशंस फ़ील करा है जो वो चारों एक-दूसरे के लिए फ़ील करता है। Yeah, even though like we've seen them for like such a small time, we got, yeah, like we understood how they feel and we got attached to them. या और जब फिर उसके बाद में जब फ्रीरेन उसके जर्नी पे निकली वापस, हाँ. तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जा रही है, कैरेक्टर्स मतलब चलो ठीक है, फेरन साथ में आ गए, उसके बाद स्टार्क आ गया, तो ये कैरेक्टर्स को लेके वापस वो उसी जर्नी पे जैसे निकल रही है, तो हमें बीच बीच में वो जो उसकी पहली जर्नी थी वो 10 साल वाली, तो उसके सीन्स दिखाए जाते हैं, वैसे हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बताया जाता, Yeah. लाइक थ्रू आउट द सीजन। तो जब हम देखते हैं वो तो हमें पता चलता है ओके ऐसा था ऐसा था। और वो छोटी छोटी चीज़ें फिर अच्छे साउंड ट्रैक्स चलाना, उनको और अच्छा ऐसे लाइक फील करवाना उन सीन्स को, साथ में वो है ना कि मतलब साउंड ट्रैक्स इसके सीन्स को काफ़ी अच्छा मतलब बना रहा है, और साथ में इसकी स्टोरी टेलिंग भी इतनी अच्छी है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लग रही है। Yeah, definitely. The small moments matter in the animes like this. या एग्जैक्टली। And yeah, like I said, this anime is just wholesome completely. I enjoyed watching like the 4 episodes that I've watched, and like it is हम्म really nice. I honestly like really enjoyed it. I want to watch more, and once I've completed it, I'll give a more detailed talk about it. At the moment, just because I've watched 4 episodes, I can't like talk about the whole thing, and you can't talk about it either हम्म। because you'll give spoilers. So या या like as far as I've seen, it's like really nice, and the soundtrack is great. The animation is also really nice, and it is definitely not what I expected. I expected something like an isekai anime definitely before watching that. um and yeah, it is सेम। like really nice. I thought like the from the first episode, I thought it was going to be like, okay, they finished this, they are going to like show them way older, and then it is going to be like Freyren will like remember what happened before, like how they've their journey, her remembering the journey or something like that. But no, that's not how it went, and I'm glad that it didn't, because that would have been like really cliche. या And yeah, her remembering these small moments in between these episodes are like really adding it to the like being attached to these characters, even though like we've seen small हम्म। snippets of them in each scenes. या And yeah, it is really nice. I enjoyed it a lot as far as I've seen. हम्म। तो मतलब तुझे सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा था, या फिर सबसे अभी तक जितने भी एपिसोड्स देखे उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी तुझे इस एनिमे की, और जो चीज़ उतनी हिट नहीं कर रही है तेरे लिए, फिर मैं Oh, बताता हूँ। okay. So
the the scene that I enjoyed the most is like, okay, it's a very small thing. I mean, it is not small, but still, Frieren in that one town going to buy her hair piece and give like friend. What was her name? I forgot. Shit. Farron. Ferren. Buying Ferren, that hairpiece and buying her desserts and stuff because she genuinely wanted to understand how her companion is, because all those years ago she didn't even make a single attempt to know how her team like was, and how what they liked and what they enjoyed, and even though it was a हम्म. small moment, I enjoyed that a lot. या वो That was a उसके really strong कैरेक्टर scene, को, huh? या, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत दिखाता है कि मतलब ये एनिमे बस ऐसे ही नहीं चल रहा है, वो कैरेक्टर्स के लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए चल रहा है, और वो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ते जा रहा है एनिमे के अंदर। अभी तो मतलब तूने बस 4-5 देखा है एपिसोड्स, तो हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट आगे और भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मतलब ये एनिमे ना टॉप पे है माय एनिमे लिस्ट पे, और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये डिजर्व करता है कि इसमें सब कुछ है, इसमें क्या नहीं है, इसमें लिटरली सब कुछ है। इसमें फाइट सीक्वेंसेस भी टॉप नॉच है भाई, मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे थे, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने सोचा नहीं था कि फ्री रेन देखते हुए मुझे फाइट सीक्वेंसेस को देख के गूज बम्स आएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इतने सही, साथ में वो साउंड ट्रैक पीछे बजता है, डैम वो बहुत कूल लगता है। आगे तो देखेगा, एपिसोड 10th के अराउंड तो देखना, ओके एक ओके। सीन, एक एपिसोड आएगा। ओके, एपिसोड 9 था वो आई गेस। तो तू देखना आगे तो आएगा वैसा कुछ, एंड तुझे भी लगेगा कि इस एनिमे में पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए मैं काफ़ी पसंद कर रहा था, और इसलिए मुझे लगा मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ उस चीज़ को कि भाई ये टॉप पर रहना डिजर्व करता है। आके Yeah, अब कितना भी मेरे से भिड़ लो, आई डोंट केयर। like I'll try my best to finish watching it by the next time we, record a podcast. या मैं तो कहूँगा कि स्लोली चल, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद अगर वो उसका नाम Kavya, हाँ, शिट, हाँ, तो काव्या भी रहेगी नेक्स्ट टाइम, हाँ, तो मतलब तुम दोनों सेम पेस पे देखने की कोशिश करो, मैं कहूँगा, okay, अगर okay. पॉसिबल है तो। अ, या फिर मतलब देखो अब तुम्हें कैसा लगता है, क्योंकि फिर वो ठीक रहेगा अगर तुम दोनों एक ही पॉइंट पे रहोगे तो बात करने में। Yeah, true. Yeah, I'll talk to her about या it and watch it together. हम्म या तो फ्री रेन का यही है, मतलब अभी तुम लोग कंप्लीट जब करोगे तो उसके ऊपर और डिटेल में बात कर पाएंगे। Yeah, we can talk फिलहाल तो about it in more मेरे details. लिए मेरे लिए बेस्ट चीज़ फ्री रेन की क्या थी, तो रुक, क्या था ऐसा। चल ठीक है, तो तूने जितना देखा उस उतने पार्ट में से एक चीज़ चूज करता मैं, तो थर्ड एपिसोड और समथिंग कुछ था, तो उसमें एक सीन है जहाँ पे स्टार्क और ड्रैगन का फाइट चल रहा है। वहाँ हाँ, पे फ्रीरेन को, मतलब वो, अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग कितना एपिक है, कि मतलब हमें फिर वो जब स्टार्क उस ड्रैगन के आगे जाके खड़े होता है, तो फ्रीरेन धीरे धीरे चीज़ें रिवील करती है, बोलने लगती है कि आइजन नाम था ना उसके मास्टर का, आई गेस मैं नाम भूल गया, आइजन ही था। yeah, yeah. तो वो कहती कि आइजन ने उसको इसलिए नहीं मारा था कि वो कमज़ोर है और समथिंग। आइजन स्टार्क से डर रहा था, लिटरली वो खुद के स्टूडेंट से डर रहा था कि वो कितना पावरफुल बन सकता है, वो देख के। एंड वो सीन मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे मुझे वो उस सीन पे, क्योंकि वो साउंड ट्रैक और एनिमेशन लिटरली सब कुछ बहुत सही था। एंड एक और चीज़ है ना, ये एनिमे ना, इसका एक नोटिस करना, ये जो कॉमेडी एलिमेंट्स जो है हाँ, वो काफ़ी स्मूथली चलता है, मतलब ऐसा फोर्स्ड फील नहीं होता है, oh कुत्ता yeah, भौंक रहा है। definitely. हाँ, तो वो
noticed that as well because like it was not feeling weird like in between. It didn't like change the whole vibe of the anime and making it weirder, but like it worked out well Yeah, with how the aesthetic of the whole show is basically. Like the jokes really worked yeah. out throughout how like I watched it at least. हुँ, और वो भी ना मतलब क्या था? ओके, मैं भूल गया। मुझे लगता है कर्ज़ मेरे ऊपर भी आ गया। ओह नो! जुनजी तो ये क्या कर दिया? ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि जो कॉमेडी एलिमेंट का कहा ना कि फ्रीरेन वाला हिट करता है। और एक है डीमन स्लेयर में, ये मैं डीमन स्लेयर का एग्जांपल लूँगा कि डीमन स्लेयर में जो फर्स्ट सीज़न में स्पेशली, तो जो कॉमेडी एलिमेंट था या फिर कॉमेडी करने की कोशिश थी वो हिट एंड मिस थी। Yeah, वो बहुत definitely. बार बहुत जगह पे फोर्स्ड फील हो रही थी कि ज़ेनित्सु बेवजह चिल्ला रहा है, बस ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के कॉमेडी नहीं होती है, वो फ़नी नहीं लग रहा है, कान फट रहा है, Yeah, मत yeah, yeah. चिल्ला भाई। मैं परेशान हो गया था, क्या कर रहा है ये यार, मतलब बंद करो। मैं तो ड्रॉप करने का सोचा था डीमन स्लेयर को, सोचा चलो ठीक है देख लेता। Okay, there's this one more scene I want to talk about before we end the podcast basically. हुँ, हुँ। That one episode where they are like finding that blue weed flower, right? ओके, वो एपिसोड अच्छा था। It was really nice. बता। I like enjoyed it a lot. It gave more, story. Like gave more context to how these characters are and how much she cares about Himmel and how much she values their friendship and like it was really just a wholesome moment. I really enjoyed it a lot. That episode. I think that या, was that was my favorite episode. Like from what I've watched at least. या एंड एनिमे देखते क्यों है हम कि रिलैक्स्ड फील हो सके, मतलब रिलैक्स फील कर सके वो देख के। और फ्री रेन वो फील कराता है। Definitely, ये it is very इतना relaxing. इत, इतना ब्यूटीफुल एनिमे है ये कि मतलब बहुत अच्छा लगता है वो देख के, शांत सा महसूस होता है। Yeah, yeah, yeah. It is like I said, it is like like I would consider this anime as wholesome. That is the genre of this anime. एग्जैक्टली भाई, मुझे मैं तो कहूँगा इसके आगे पीक लिख दो, उसके जॉनरा के आगे पीक। क्योंकि तू कंप्लीट करेगा ना तो तू भी यही बोलेगा देखना, मुझे गारंटी है। Yeah, let's see. या एक और चीज, कुछ तो भी कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, कुछ तो कह रहा था, रुक एक मिनट। कुछ तो था, क्या था, भूल गया। तो ओके, आज पता नहीं आज बहुत सी चीजें भूल क्यों रहा मैं। आई गेस No, don't worry. आई गेस हमने गलती कर दी, उस उज़ुमाकी की बात करके हमने गलती कर दी। वो कर्ज अब हम दोनों के पीछे लग चुका है। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक हम खुद का नाम भी भूल जाएंगे। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही होने वाला है। Uzumaki is a cursed और topic. कोई लिटरली भाई, अबे और कोई एनिमे मतलब चल रहा है क्या ऐसे कोई ऑनगोइंग में? मैं तो इतने ही देख रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ओ A या new. री जीरो चल रहा है, जो देखा नहीं है। री जीरो चल रहा है ऑनगोइंग, जो देखा नहीं है उसका कोई थर्ड और फोर्थ सीजन आया। एंड ब्लू लॉक भी चल रहा है, गेस वो भी मैंने नहीं देखा है। ब्लू Yeah, but बॉक्स भी चल रहा है यार। Blue Lock is तो बहुत another सी चीजें anime चल रही which is like, really bad animation and it just sucks completely. ओके, तो मतलब जो मैंने सुना था कि वो ब्लू लॉक बहुत अच्छा है, तो ये सच नहीं The है। first season was good, but then it was bad. या सो मतलब उसका हाईक्यू के साथ जो कंपैरिजन हो रहा था वो मतलब No man, Haikyuu आफ्टर is ऑल so बकचोदी ही better. थी। What the heck? मैं वही सोच रहा था, मैंने अब ब्लू लॉक देखा नहीं था तो मैं कोई कमेंट पास नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कर रहा था। तो मतलब या मतलब हाईक्यू को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो
पता नहीं वो काफ़ी बायसनेस है मेरे अंदर, तो बिना देखे भी मैं कभी-कभी बोल देता हूँ कुछ चीज़ें जो अगर मैं कोई एनिमे फिर देख लूँ और मुझे अच्छा लगे तो मैं वापस भी ले लेता हूँ। बट फिलहाल तो हाईक्यू। हाईक्यू देखी है तूने? Yeah, like a few seasons, first three seasons, I think. I haven't completed it. ओके, फर्स्ट 3 सीज़न्स मतलब इनफ है समझने के लिए कि एनिमे पीक है वो। Hmm. I mean, I will complete it at some point, but not right now, at least. I have a lot to watch, मैं like तो a lot to watch. यार सेम 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 भाई। मैंने ना मतलब हाइक्यू देखा हो पूरा, लेकिन मैं भूल चुका हूँ बहुत चीज़ें क्योंकि मैंने कब करा था मैंने 4 साल हो गए होंगे। ये 4 साल पहले मैंने इसके स्टार्टिंग के सीज़न्स देखे थे। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मतलब क्या है ये मतलब ठीक है कुछ-कुछ चीज़ें याद है लेकिन हर चीज़ याद नहीं है। सो लेट्स सी मैं इसको रिवॉच करूँगा आई गेस। और रिवॉच करने के बाद वापस मतलब वो समझ आ जाएगा कि ओके कैसा-कैसा था क्योंकि भूल जाता है, याद नहीं रहता हर चीज़। Also, what are your like most awaited, anticipated animes like of next year at least that has been announced? नेक्स्ट ईयर Huh. रुक सोचने दे। पहला तो यार मतलब क्या आ रहा है नेक्स्ट ईयर? कोई कुछ बता दे क्या आ रहा है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। तुझे कुछ पता होगा तो। I am excited for a few ones at least. Devil May Cry, an anime is coming next year, and it looks great. And since I'm also हुँ, like a fan of the games, it's like really exciting to see how this goes. And there's this one anime. Shit, I forgot. I mean the name. 1 second. I'll, हुँ, one क्या हो second. गया? 1 second. ओके। Okay, the fragrant flowers blooms with dignity. That one. It's a rom-com and या इसके मांगा का मैंने देखा था थोड़ा बहुत कि मतलब हो गया रोमांस एनिमे। yeah, I've heard it's like so good and I'm like really excited about it. I want to, I mean, I'm tempted to read the manga, but like I'm trying my best to like wait for the anime. And since like the preview released, it looks great. Like the animation looks great. हुँ, हुँ, या In like the rom-com genre, Horimiya is definitely my favorite. So let's see. Maybe this can top that. होरीमिया और भी आ रहा है क्या? No, I don't think so. Horimiya is done completely. ओके, ओके। नेक्स्ट ईयर का मैं लिस्ट देख रहा था और इसमें से कोई पहचान का दिख ही नहीं रहा। आई गेस मैं लिस्ट ही गलत देख रहा हूँ फिर। और अम, इस पे होगा शायद। Okay, but there's also like one anime in particular which I'm like really intrigued about, which I want to talk about. I wanted to हुँ, talk हुँ, about this last time, but I forgot about it. It is the Berserk remake, or not a remake, but like it's fan made, but still it's not fan made. It's weird because like they मतलब they are a legit studio which is like going to be making its own. Everything is going to be from scratch, like the animation, everything, and music, voice acting, everything is going to be from scratch. But like, do they even have the license to do that? That's what like it interests me, and they're like going all out with this because I've seen the trailers and stuff, and it looks great, and I'm really intrigued of about what they're going to do about this anime. They're like still saying it's not cancelled, don't worry, blah blah blah. We are working on it and stuff like that. So like, what are they going to do about the whole copyright stuff? I mean, it's not like Berserk is a free domains thing or anything that they can just use however they want. अच्छा अब आवाज़ आ रही है मेरी? Ha, yeah, I can hear you now. अरे आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। I see. ओके तो
तूने क्या बोला, मतलब वापस से एक बार बोल दे फिर। Okay, okay. Where did you hear? I'll just say it from the top, like from the beginning. हम्म। So, like what I was या। saying that was that I was like really interested and intrigued about a new Berserk anime that's about to come out, which is like being made completely by fans, and I mean they have a big team, I think, and so far it looks great from the small teasers and trailers that they have dropped. It looks like a top-notch anime studio would make, and they are like doing everything from scratch: the voice acting, the animation, the music, everything. They are doing it from scratch. But like, here's the thing: the copyright issue would be a thing, right? They would have legal troubles with the publishers and makers of Berserk, basically, even though the author is dead. But like, you know, they'd still have legal issues with whatever they put out because they don't have the rights. Like, they're still a fan-made, a studio, and they're still putting out updates saying, yeah, it's not cancelled, it's still coming out, blah blah blah. It's a really interesting, scenario where, like, I don't know how they're going to go forward with this. Maybe they'll get like special permission to, you know, adapt this anime or something like that. But still, as of right now, I don't think they have the copyright to even adapt this properly. But here's the thing: the trailers and things looks great. The from the snippets I've seen, it looks great. So it's interesting to see how things are going to go for them, at least. हम्म। या आई थिंक ऐसा कर सकता है कि अगर एनिमे बना ले और उसके बाद में उसका जो प्रॉफिट होगा Hmm. वो जो क्रिएटर्स है ओरिजिनल, Hmm. तो उनको परसेंटेज में इतना जाएगा उतना जाएगा। आई थिंक ऐसा कुछ कर सकता है अगर करेगा। Yeah, that बट is true. स्टिल ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। Yeah, the whole thing is a bit complicated. हम्म। मेरे यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा। I don't know if you've seen, but like also the second season for Cyberpunk Edge Runners have been announced. मैंने पहला ही नहीं देखा है। You should though. It's like really good. It's really good. You देखूंगा मैं, should try उसका watching आर्ट it. स्टाइल It's like काफ़ी इंटरेस्टिंग लग a रहा था। top-notch anime, and it also like got anime हम्म। of the year that year, the year it came out too. कब आया था? Honestly, like even if it's so small, I enjoyed it a lot. It is like so good. I कब आया consider था? it like S tier. Hello. I think you got disconnected again. Yeah, he got disconnected again. Sorry, guys. Hello. हाँ। Hello. ओके, अब आ रही है आवाज़। Yeah, यार yeah, ये I बार can बार hear you. डिस्कनेक्ट हो रहा है डिस्कॉर्ड। वीपीएन के बिना चल ही नहीं रहा। Yeah, I wonder what happened. Suddenly it just went, yeah, like your voice just went off. ओके, सो मैं पूछ रहा था कब आया था वो एनिमे? Wait, 1 second. I think it came out 2 years ago. Wait,
It came out in 2022. Yeah, 2 years ago. ओके, देख लूँगा मैं इसको फिर, Hmm. क्योंकि मेरे वॉच मतलब विश लिस्ट में था ही, Hmm. तो देख लूँगा। It's definitely a great anime, and it definitely did justice to whatever the story. Like it is a like completely new story. It's not like following the game. Like it is हम्म। canonic to the games basically. Like it is happening in the city which the game takes place in, but like the characters are totally different. New characters, new places, like stuff like that. या देखता मैं इसको, फिर उसके बाद में इस पे भी बात करेंगे। Hmm. Yeah, we should we should talk about it next time. या सो आज के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हो गए ना? Hmm. Yeah, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा I don't think there's anything है more ना? to talk about. या मेरे पास भी नहीं है कोई टॉपिक फिलहाल। हाँ. मतलब सब कुछ हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, जो भी इस वीक आया या फिर पिछले 2 वीक्स में आया था। Hmm. Yeah. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। Hmm. Yeah. Thank you guys for watching, and we'll see you guys next time. लेट्स सी यहाँ तक किसी ने सुना भी होगा या नहीं सुना होगा। Honestly, ओके, सो I अगर think so. किसी ने सुना होगा, तो Hmm. इस टाइम को लाइक कमेंट्स में मेंशन करके बताओ कि मतलब सुना है। Hmm. Yeah. अगर नहीं कर रहे मतलब तुमने नहीं सुना है। तो या आज के लिए बस इतना है। बाय बाय। Thank you for listening.